So our last lecture we have started with a new concept which was based upon finding the probability, finding the probability of an event by using the odds. The first one, suppose if the odds, if they are given in the favor, and that odds in the favor are given to be as x is to y, then the probability of a is given by probability of a is given by the answer is it is given by x upon x plus y. Very good. And the technique which we have learned to remember this formula, it was given by numerator upon numerator plus denominator. Very good. If the odds against the event are m is to n, are m is to n, then yes, the technique to remember the formula is denominator upon numerator plus denominator. Chetna, but your answer is wrong. Chetna, it should be n upon yes, m plus n denominator upon. And today, I'll be explaining you about something different. In the last lecture, what we have learned how to find the probability by using the odds. How to find the probability by using the odds. Today I will be explaining you the trick from which hey, you will able to find the odds from the probability. भाई देख odds में से तो बड़ा probability कोई भी फाइंड कर सकता है बड़ा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट आज हम लोग को सीखना है कि अगर हम लोग के पास बड़ा प्रोबेबिलिटी दिया हो तो उसमें से हम लोग बड़ा ऑड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं तो बड़ा फर्स्ट केस इट विल बी फॉर फेवर राइट इट इज फॉर फेवर एग्जांपल नंबर 1 is the probability of A is given to be as 3 upon 5. This is the probability. It is not the odds. It is a probability. And from the probability, I want to find the odds. Okay.
odds it can be in the form of numerator upon numerator plus denominator. मुझे ये पता है बेटा कि न्यूमरेटर इज 3, राइट? Numerator is 3 and denominator beta, that is the sum of numerator plus denominator is beta 5. Numerator plus beta denominator is 5. तो अब यही टर्म को बेटा मैं क्या करूंगा, ये देखो स्प्लिट as 3 upon, देखो न्यूमरेटर इज 3 प्लस बेटा डिनोमिनेटर में मैं कौन सा वैल्यू ऐड करूं सो दैट द टोटल विल बिकम 5? चलो टेल मी द आंसर. वेरी गुड, आंसर विल बी 2. अब जरा एक बार बड़ा ध्यान से चेक करो, ये देखने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि नहीं? इट इज एग्जैक्टली बड़ा इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन x प्लस y. इसका मतलब बड़ा इन द फर्स्ट केस जो मुझे ऑड्स मिला बड़ा वो 3:2 मिला. अब ये देखो 3 तो मुझे पहले से ही पता था, खाली ये जो पार्ट है बड़ा डिनोमिनेटर वो कैसे लाया पता चला? बहुत सिंपल सा टेक्निक है. नीचे कौन था बड़ा 5, ऊपर कौन था बड़ा 3, तो मैंने 3 को बड़ा 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 माइनस 3 2 आ गया आंसर फटक से. नेक्स्ट, probability of A is 6/11. तो चलो मुझे बताओ बच्चा लोग, ये एग्जांपल में व्हाट विल बी द ऑड्स? कौन बताएगा फटाफट मुझे? ऑड्स बड़ा पूरा आंसर जी, पूरा. वेरी गुड. It will be 6:5. Very good, Dave. Chalo, everyone, perfect. Probability of A is 8/17. Probability of A is 8/17. So answer will be 8. Very good. So start. Now with respect to Eric against ready? With respect to against.
probability of A is given to be as 4/9, and with respect to against मैंने तुम लोग को क्या ट्रिक दिया था, it is a denominator upon numerator plus denominator। मुझे फिर से ये देखो पता है कि डिनोमिनेटर is considered to be as 4 जबकि टोटल न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इट इज 9। तो इसका मतलब अब तुम लोग मुझे उसका आंसर दो बच्चा लोग। जब मैं स्प्लिट करेगा तो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4 अपॉन 4 प्लस 4 में बेटा मुझे ऐड क्या करना होगा 5 this given term is exactly in the form of ये देख लो 10 upon m plus n एंड उसके लिए तुम्हें जो ऑड्स मिलेंगे वो क्या हो गए 5/4। अब इस बार बेटा मुझे पहले से क्या पता था, डिनोमिनेटर राइट, क्या नहीं पता था बेटा मुझे न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कैसे फाइंड किया, टेक्निक सेम बेटा, ऊपर 4 था नीचे 9 था, मैंने 4 को बेटा 9 में से सबट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट probability of A is equal to 8/11। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताओ बच्चा लोग। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। probability of A is 4/13। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। स्क्रीन शेयरिंग बड़ा 1 मिनट में स्टॉप कर रहा हूँ और ये सब रिवाइज करो बड़ा सब लोग। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक।
तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। With respect to 4 by 13, very good. The answer is 9 by 4. And now take out the sum. Exercise का sum निकालो. Sum number 3. Third sum में आओ. Third sum. If an unbiased die is rolled once, if an unbiased die is rolled once, the odds in favor of getting a point, which is a multiple of 3, is. But you are supposed to find the odds in favor, the odds in the favor of getting a point, which is a multiple of 3, which is the multiple of 3. चलो तो ऐसा केस में सम कैसे सॉल्व करेंगे? तुम लोग अब मुझे बताओ कि अब तक तुम लोग बड़ा सारे आंसर्स मुझे क्यों डायरेक्टली दे पा रहे थे, तुम्हें पता है? ये बड़ा हर बार मैंने तुम लोग को सब में बड़ा प्रोबेबिलिटी दिया था, बट इस बार बड़ा सब में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है. अब बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं है तो क्या करे भाई, उससे हमें फाइंड करना तो पड़ेगा. और तो चल स्टार्टिंग विद बड़ा सिंस an unbiased dice is rolled once. Start with since an unbiased die is rolled once. There you go. Sample space will be yes, it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and therefore 10 of S. Answer is equal to 6. Let A be the event.
let A be the event of getting a number, of getting a number, which is a multiple of 3. तो भाई मुझे बता, गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, कौन कौन है बड़ा मल्टीपल ऑफ 3? Three and 6. Okay. Therefore, n of A is equal to the 2. And by using the formula, P of A is equal to n of A upon n of S. Answer will be 2 by 6 and 2 by 6. That means the answer will become 1 by 3. But 1 by 3 is my final answer. So, since this is the probability, तो यही 1/3 को अब क्या करोगे तुम लोग? यही 1/3 will be split in the form of 1 upon 1 plus 2. तो ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1:2. और मुझे अब यहाँ पे बड़ा डाउट है कि सपोज अगर ये फेवर के लिए नहीं बड़ा अगेंस्ट में होता तो क्या करते? वेरी गुड ऋषभ, आंसर वुड बी 2:1. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट. Some number बड़ा 27, mark it very important. 4 digits, 1, 2, 4, and 6 are selected at a random to form a 4-digit number. What is the probability that a number so formed it would be divisible by 4? चलो आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ. The given sum is based upon given sum. It is based upon things. 4 digits. They have to be selected. Yes, very good, Sabyu. सब लोग एक साथ बोलो. बोलते रहो. And that is wrong.
That is wrong, and it is not only wrong, it is a horrible wrong. तुम लोग सब लोग सोच रहे हो कि बट सर आपने ही हम लोग को पढ़ाने के टाइम बोला था सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। हाँ मैंने ही पढ़ाया था, बट मुझे थोड़ी ना पता था कि बड़ा तुम्हारी जड़ें सारी की सारी हिली हुई है। भाई मुझे 4 डिजिट नंबर बड़ा फॉर्म करना है, तो उसके लिए बड़ा नंबर जो है बड़ा मुझे सिलेक्ट नहीं, वहां पे बड़ा अरेंज करना पड़ता है, अरेंज, एंड बाय अरेंजिंग द डिजिट्स बड़ा आई कैन फॉर्म द 4 डिजिट नंबर। ये तुम लोग ने बड़ा अगर फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन अगर चैप्टर बराबर ध्यान से पढ़ा होता बड़ा, तो उसमें भी वो टाइप के सम्स आए थे बड़ा, जहाँ पे तुम लोग ने बड़ा डिजिट्स को अरेंज किया था बड़ा, अरेंज। इसलिए बड़ा सम कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं, द सम इज बेस्ड अपॉन बड़ा परम्यूटेशन। मैंने बोला था बड़ा कि सर सम इज इम्पोर्टेंट बड़ा। तो मैं समझ जाना चाहिए था बड़ा। तो स्टार्ट, कोई बात नहीं, मैं हूं ना बड़ा। Things, things, a 4 things, the 4 digits number, things, a 4 digit number. It has to be formed by using 1, 2, 4 and 6। तो उसके लिए बड़ा मुझे क्या करना होगा, डिजिट्स को बड़ा सिलेक्ट नहीं, डिजिट्स को क्या करना होगा, अरेंज बड़ा। नेक्स्ट टाइम therefore write down the total number of ways in which the total number of ways in which 4 digits they can be arranged among themselves is